Hello everyone, welcome to the Booster Shot. By means of this show, I, Ayush Gupta, cover for you on a daily basis the big picture debate of the Rajya Sabha TV, Indian Express's explained section and the Science Monitor by Rajya Sabha TV. Now, in order to ace any competitive examination, the key lies not in expanding our sources of information, but in curtailing our sources of knowledge. It is this very reason why I have selected these three issues. Not only does these issues cover all the issues of national and international importance, but along with it, they also provide us with certain perspectives which are important to make our answers unique. And therefore, I have specially curated this show for you. Then, let's start with our today's topic. Today we are going to discuss about Indian Express's today's explained section. The part we are going to talk about is the National Monetization Pipeline, which is also a part of National Investment Pipeline Strategy. So, let us first look the context in which we are studying this. So, recently the Finance Minister has announced government plans to monetize brownfield assets to raise 6 lakh crore till 2025. So, you can see over here that the Finance Minister, Honorable Shri Nirmala Sitharaman ji, has unrevealed this plan. So I have framed this question, and while answering this very question, we are going to understand the entire perspective with respect to it and the entire debate for and against this plan. So first of all, elaborate the model of monetization proposed by NMP, that is the National Monetization Plan, along with models adopted earlier for monetization of government assets, and how NMP is linked to National Infrastructure Pipeline of 2019. So this is our part 1 of the question. The part 2 of the question is, what are the assets that it seeks to monetize? वह कौन से assets हैं जो कि NMP के तहत monetize होंगे, and the likely challenges to the success of this policy initiative. So what are the challenges that this policy is going to face? And lastly, along with this, also provide suggestions to address public outcry against monetization of government assets. So there is an outcry that the government is selling family silver in order to foot the bill of groceries. So we are all going to understand this entire debate while answering this question. So let's start with answering the first part. That is, elaborate the model of monetization proposed by NMP, along with the models adopted earlier for monetization of government assets and how NMP is linked to NIP of 2019. So, by means of NMP, the government is trying to monetize the assets, and what is going to be the model? So, the model is transferring revenue rights to private players. रेवेन्यू राइट्स का मतलब कि कोई एक एसेट है गवर्नमेंट का, एंड वह एसेट गवर्नमेंट के लिए कुछ मनी जनरेट करता है. सो वो जो मनी दैट एसेट इज जनरेटिंग, इट इज कॉल्ड द रेवेन्यू. सो द राइट टू कलेक्ट दैट मनी विल बी गिवन टू द प्राइवेट प्लेयर्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टाइम, एंड इन रिटर्न इसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? सपोजिटली गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इस हाईवे पे आप टोल लगा के अगले 20 साल तक इससे रेवेन्यू ले सकते हैं, टोल कलेक्ट कर सकते हैं. सो इसके बदले में जो प्राइवेट प्लेयर है उसे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? एन अप फ्रंट मनी, कि एक लमसम अमाउंट वो देगा. सेकेंडली, अ शेयर इन रेवेन्यू, कि सपोजिटली गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये आपको रोड दे रहे हैं एंड इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. सो सपोजिटली द पोटेंशियल ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम दैट वेरी रोड बाय पुटिंग अ टोल ऑन इट is roughly 100 crore rupees an year. Now the government asks the private player how much you are going to give it to us. So the private player may say that I'll give you 500 crores upfront and 10% share in the revenue every year. Along with this, he is going to commit that he is going to invest in these assets. He is going to expand this road, maybe expand this road or maintain this road. So this is a hypothetical example that I am giving you. So against this revenue share, government may get an upfront money, a revenue share and a commitment from the private player to invest
further into those assets. These will be brownfield assets. Brownfield assets कौन से होते हैं? Let us contrast this with greenfield assets. Greenfield assets वो होते हैं जो कि अभी बने नहीं हैं, जो कि शुरुआत से बनाने होंगे. Brownfield assets वो हैं जो कि ऑलरेडी वहां पर हैं. And which brownfield assets there will be? So ये वो assets है जहां पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है, एंड या तो ये ऐसे ही पड़े हैं, इनका कोई यूज नहीं हो रहा, जैसे कि वेरियस मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट की ऐसी हैं जिनके पास अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं एंड वह ऐसे ही पड़ी हैं, या फिर इनका पूरी तरीके से मोनेटाइजेशन नहीं हुआ. इसके मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं. अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जो शहर होते थे उसके अंदर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे उनके लिए क्वार्टर्स इरेक्ट करती थी, क्योंकि हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं होती थी. इसलिए यदि किसी एम्प्लॉय को वहां भेजना है तो उसके लिए एक हाउसिंग क्वार्टर भी रखा जाता था, बना दिया जाता था. आज की तारीख में ये जो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है इन सारे शहरों में पूरी हो चुकी है, एंड एम्प्लॉइज आर हैविंग बेटर प्लेसेस टू स्टे. लेकिन गवर्नमेंट की कॉलोनी तो बनी हुई है, एंड एम्प्लॉइज को HRA भी मिलता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस. सो वो HRA गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूज कर लेते हैं किसी एक अच्छी अकोमोडेशन को यूज रेंट पे लेने के लिए. एंड जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी जो बनी हुई है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कॉलोनी, वो दीज प्रॉपर्टीज आर इन शैम्बल्स, एंड बिकॉज ये पुरानी भी हो चुकी हैं इसलिए वहां पे उनका कोई यूज नहीं करता. सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर लैंग्विशिंग. देन नॉट फुली मोनेटाइज्ड. अब हम रेलवेज को देखते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट करने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है. सेकेंडली, यदि आप दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि उसके आसपास मैकडॉनल्ड्स भी खुला हुआ है रेलवे स्टेशन के अंदर ही. सो बेसिकली रेलवे स्टेशन में ईटरीज का बहुत बड़ा स्कोप है, एंड नॉट ऑल रेलवे स्टेशन आर फुली मोनेटाइज्ड. along with it such other assets are also not fully monetized. So ऐसे brownfield assets को मोनेटाइजेशन करी जाएगी. इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी? दिस कैन बी बाय मीन्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स. अब इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली वर्क करती हैं म्यूचुअल फंड्स की तरह. सो बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट मार्केट में एक एसेट लेके आई है, गवर्नमेंट ने डिमांड किया 100 करोड़ रुपीस इस रेलवे स्टेशन का हमें चाहिए. सो एक कंपनी बनेगी, एक ट्रस्ट बेसिकली, जो कि ये कहेगी कि हम इस 100 करोड़ रुपए के एसेट को गवर्नमेंट से ले लेंगे एंड फिर इसे हम चलाएंगे एंड हम इससे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे. नाउ दिस कंपनी विल गो टू रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि कुछ कंपनीज होंगी या फिर नॉर्मल पीपल होंगे, एंड उनको ये कहेगी कि आप हमारा शेयर ले लीजिए, एंड सपोजिटली एक शेयर 100 रुपीज का है, आप हमें 100 रुपए दे दीजिए, एंड फिर आपसे ये हम पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट हायर कर लेंगे, एंड इससे जो भी रिटर्न आएगी खर्चे काट के हम आपको इसका बेनिफिट देते रहेंगे. सो दिस इज हाउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वर्क. These trusts are then also listed in share markets, share exchange markets. Now, शेयर एक्सचेंज मार्केट में जब ये ट्रस्ट इनलिस्ट हो जाती हैं तो एक सेकेंडरी मार्केट बन जाती है. सपोजिटली मैंने शेयर लिया एंड मेरे को कंटिन्यूसली रिटर्न मिल रही है साल की 20-25% उस पर, जो कि मैंने पैसा लगाया, क्योंकि वो है एसेट, उससे इतना पैसा जनरेट कर रहा है एंड फ्यूचर में उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा है. सो देयर माइट बी पीपल जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, एंड उस शेयर की वैल्यू मैंने 100 रुपये में खरीदी थी एंड मेरे को साल के वो डिविडेंड दे देता है 20 रुपये. सो देयर माइट बी पीपल हु से कि हम आपको इस शेयर का 110 रुपये देने के लिए तैयार है. सो इस तरीके से मेरे शेयर को मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ हर टाइम, लिक्विडेट कर सकता हूँ हर टाइम. सो एक ऑल टुगेदर नई मार्केट बन जाती है. ये तो विद रिस्पेक्ट टू हुआ कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है. एंड इंडिया के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स बेसिकली इनको रेगुलेट कर रही है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वह ट्रस्ट होंगी जो कि सिर्फ रियल एस्टेट के उन एसेट्स को लेगी
एंड उनसे रेंट जनरेट करेगी। ये जनरली जैसे ऑफिस स्पेसेस बना दी गई या फिर कोई हाउसिंग एरियाज को ले लिया गया। वेयर एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी उठा सकती हैं जिन पे कुछ काम किया जाएगा और जिन्हें वह ऑपरेट करेगी एंड फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होएगा। वेयर एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को तो सिर्फ प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है और उसे किराए पे चढ़ाना है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो इन दिस वेरी मैनर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका काम थोड़ा कम है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम थोड़ा ज्यादा है। सो एज आई सेड that these are also listed on stock exchanges जो कि liquidity provide करती है through secondary markets। ये जो मनी जनरेट होएगा इसके द्वारा जो कि गवर्नमेंट मनी जनरेट करेगी, ये मनी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी फर्दर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। देन टारगेट क्या है इस प्रोजेक्ट का? टारगेट ये है कि 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने इस मॉडल से बिटवीन द ईयर्स 2021 टू 2025। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन का मतलब कि एक चीज में से एक आइडल एसेट पड़ा है उसके अंदर से रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो और कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि पहले गवर्नमेंट ने यूज कर रहे हैं एसेट्स को मोनेटाइज करने के? सो वी हैव OMT दैट इज ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर, कि आप ऑपरेट करिए हाईवे को, उसे मेंटेन करिए एंड कुछ साल बाद ट्रांसफर कर दीजिए, अपना पैसा कमा लीजिए। देन TOT टोल लगाइए, ऑपरेट करिए और ट्रांसफर कर दीजिए। सिर्फ टोल को आपने ऑपरेट करना है एंड उसकी मेंटेनेंस वगैरह हम देख लेंगे। देन ऑपरेट मेंटेन एंड डेवलप, कि आप ऑपरेशन संभालिए, ऑपरेशन से जो पैसे कमा सकते हैं कमा लीजिए, मेंटेन करिए एंड डेवलपमेंट कर लीजिए एंड उसको ऑपरेट करके जब डेवलपमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा लेन्स ऐड कर दिया आपने तो उससे जो पैसा जनरेट होएगा उसके ऑपरेशन से वह आप ले सकते हैं। सो ये मॉडल्स यूज करे गए, पहले 2 मॉडल्स हाईवे सेक्टर के अंदर एंड ये वाला एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर। सो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पहले अपने एसेट्स को मोनेटाइज किया है। सो एक और चीज देखते हैं, अब NIP के बारे में जानते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। यूनियन बजट ऑफ 2019 के अंदर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री नीड्स अबाउट 100 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर so as to reach the 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क बाय 2025। इसके लिए बनाई गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सो इसका टारगेट था कि बाय 2025 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। सो NMP और NIP बात करता है 100 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने की, 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर में, और NMP नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बात करता है 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने की। सो बेसिकली ये भी चलेगा फ्रॉम 2021 टू 2025 एंड इसको भी 2025 तक करनी है ये इन्वेस्टमेंट। सो यहां से पैसा जनरेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां डालेगी। सो विच इज व्हाई दे आर गोइंग टू वर्क को-टर्मिनस। दिस इज द लिंक बिटवीन बोथ द प्लान्स। यहां पे मैं आपको एक NIP की एक स्लाइड है जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये 100 लाख करोड़ रुपए कैसे आएंगे। इसके अंदर रफली सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है, टारगेट है 39%, स्टेट गवर्नमेंट्स 40% एंड प्राइवेट सेक्टर 20%। सो रफली बाय NMP सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 14% तक का जो टारगेट है 100% ऑफ टोटल जनरेटिंग 44 लाख करोड़ रुपीस, इसका जनरेट करने की एम कर रही है। नाउ we are moving on to the second part. So what are the assets that it seeks to monetize and the likely challenges to the success of this policy initiative? अब हम ये देखते हैं कि वह कौन कौन से assets हैं जो कि गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहती हैं। ऑल्दो इसका आपका ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आना एज टू विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली कि कौन कौन से assets हैं is unlikely, but it is also needed for us to understand the challenges that can arise. So assets हैं such as roads, railway stations, train operation and tracks, airports, stadiums, power transmission lines, hydroelectric and solar power assets, fiber assets, telecom towers, BSNL के towers idle पड़े हैं, natural gas pipelines हैं, basically ये power transmission lines हैं, and apart from that we have redevelopment of various government colonies जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड के दौरान बताया,
and hospitality assets including certain hotel chains which are run by the government. अब सबसे मेन एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेस टू सक्सेस ऑफ दिस प्लान. चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू इन वेरियस एसेट्स. सो यहां पे आप रेवेन्यू ऐड कर लीजिएगा इस स्लाइड पे. सो लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू. सो बेसिकली हमने एक एसेट तो देख लिया, इसको हमें मोनेटाइज करना है, बट सामने वाले जो इन्वेस्टर है उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम इसके अंदर से पैसा जनरेट कैसे करेंगे. इसका सबसे प्राइम एग्जांपल रहा है जब हमने रेलवेज को मोनेटाइज करने की कोशिश करी है. सो क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स उसके अंदर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. सेकेंडली आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर ट्रांसमिशन लाइंस कि सरकार की पावर ट्रांसमिशन लाइंस है जो कि प्लांट से लेके जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक. सो इन पावर ट्रांसमिशन लाइंस को किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है या फिर क्या पोटेंशियल रहेगा इनमें से पैसा कमाने का, क्योंकि आज तक इन्हें मोनेटाइज एज सच नहीं करा गया. देन लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. अब आप सोच लीजिए हम गवर्नमेंट चाह रही है कि वे अपनी पाइपलाइंस को मोनेटाइज करते एंड गवर्नमेंट कहेगी कि इस पाइपलाइन की कैपेसिटी सो एंड सो है एंड इसके हिसाब से आप हमें शेयर दीजिए. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, सो हम आपको इसकी फुल कैपेसिटी की पेमेंट क्यों करें. गवर्नमेंट कहेगी कि फ्यूचर में हो जाएगी एंड पीपल आर लाइक हाउ सर्टन इज दैट. सो देन इशू कम्स. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. अब आप ये देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के पास कई बार सॉवरेन पावर्स भी होती हैं एंड गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी एक्सरसाइज करती है जिन लोगों के साथ वह कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. सो इन सिनेरियोज में डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स क्या होगा? जो भी प्राइवेट एंटिटी है जब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आती है, इट वांट्स दैट डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म शुड बी क्विक. सो उसके लिए होता है एक आर्बिट्रेशन का सिस्टम. हाउएवर इंडिया के अंदर आर्बिट्रेशन सिस्टम के अंदर भी लूप होल्स लोग ढूंढ लेते हैं एंड अल्टीमेटली उसी सेम ट्रैजेक्टरी पे चल पड़ते हैं. दैट इज आर्बिट्रेशन को चैलेंज कर दिया जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. एंड विच इज वाई डिस्पाइट ऑफ आर्बिट्रेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग होता क्या है, सेम ही ट्रैजेक्टरी एंड उतना ही टाइम लग जाता है एंड इसके बीच में जो कंपनीज हैं उनको मैसिव लॉसेस हो जाते हैं. सेकेंड, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, करंटली फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड वेरियस प्राइवेट एंटिटीज जिनको टोल ऑपरेशंस मिले हुए हैं, दे आर अंडरगोइंग ह्यूज लॉसेस. सो हु इज गोइंग टू बेसिकली कवर अप दोज लॉसेस? क्योंकि गवर्नमेंट का इट इज विद द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सो एज टू क्लियर आउट दोज टोल्स एंड गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चंस. सो इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे एंड इसके अंदर जो रेवेन्यू का लॉस है उसका सोल्यूशन कैसे होगा? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. देन रेगुलेटेड टैरिफ्स इन पावर सेक्टर. नाउ हमने आपको ट्रांसमिशन लाइंस तो दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स दे दिए, लेकिन सरकार कोई कानून ले आती है ये कह के कि टैरिफ आप इतने से ज़्यादा नहीं ले सकते, या फिर इन सेगमेंट्स से आप फार्मर्स को आपको रिबेट देनी पड़ेगी, या फिर कि आप टैरिफ तो चार्ज कर लीजिए लेकिन वो टैरिफ का पैसा हम आपको देंगे एंड सरकार उस टैरिफ का पैसा देने में पता नहीं कितने साल लगा देती है. एंड बिकॉज ऑफ द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंपनी हु इज गेटिंग द प्रोजेक्ट, कंपनीज आर नॉट एबल टू स्पीक अप. सो इन सिनेरियोज में क्या होगा? देन लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन हाईवेज, national highways which are below 4 lanes. So because a major component of this scheme has roads in it, monetization of roads, लेकिन जो नेशनल हाईवेज जो कि 4 लेन नहीं है एंड 2 लेन्स ही हैं, उसके अंदर बेसिकली इट हैज बीन सीइंग कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम है. सो उस सिनेरियोज में क्या होगा? सो ऐसे कुछ सिनेरियोज में जैसे कि रोड्स के सेक्टर में गवर्नमेंट हैज सेड एंड एनालाइज कि एनएचआई के जो हाईवेज लगभग 22% ऑफ हाईवेज विच आर रन बाय एनएचआई, उसके अंदर से 22% आर दोज जो कि 4 लेन है. सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हम 4 लेन वालों को ही मोनेटाइज कर देते हैं. चलो, सो इन दिस वेरी मैनर द की टू सक्सेस लाइज इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ दीज मोनेटाइजेशंस, कि कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, कैसे एग्रीमेंट बनाए जाएंगे, रेवेन्यू शेयर्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे, एंड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क टू मेक दिस प्लान अ
सक्सेस टाइम बाउंड मैनर में कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा. So this is with respect to the challenges there were, and a simple we can say the way forward would be in line that the key lies in structuring of these monetization plans. Then let's come to the main question. Every scheme of the government is generally politicized. So with respect to disinvestment or monetization, there are always sentiments attached of the people, and which can be seen in recent criticism of the government's policy with respect to this monetization program also. So third part of the question was, along with this, also provide with suggestions to address public outcry against monetization of government asset. So basically पहले हम प्लान का ऑब्जेक्टिव एसेस करते हैं. प्लान का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ इनकम होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके दो मेन पार्ट होते हैं, लैंड एंड कैपिटल. सो बेसिकली प्लान ये है कि लैंड और कैपिटल का पूरी तरीके से यूज हो, सो दैट इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाए. ठीक है. नाउ इस नेगेटिव परसेप्शन को कैसे काउंटर किया जा सकता है? नेगेटिव परसेप्शन को ये इस तरीके से काउंटर किया जा सकता है दैट वी हैव टू इंश्योर दैट एसेट मोनेटाइजेशन इज नॉट लिंक्ड टू रेवेन्यू एनहांसमेंट. कि एसेट को मोनेटाइज करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, सरकार को अपने खर्चे के लिए जो अमाउंट है वो बढ़ानी है, बल्कि एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर रेकरिंग इनकम तो यूज हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एंड नॉन रेकरिंग इनकम यूज होए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. अब रेकरिंग इनकम क्या होती है, नॉन रेकरिंग इनकम क्या होती है? रेकरिंग इनकम वो जो हर साल आनी है, ठीक है, एंड नॉन रेकरिंग इनकम वो जो कि वन टाइम होएगी. जैसे कि मैंने आपको बताया स्कीम के अंदर एक पेमेंट तो होएगी अपफ्रंट, दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट कोई रेवेन्यू शेयर भी ले सकती है. सो वो रेवेन्यू शेयर तो एक तरीके से रेकरिंग इनकम हो गया, एंड जो अपफ्रंट पैसा आया वो हो गया अब हमारा नॉन रेकरिंग थिंग. सो एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर रेकरिंग इनकम यूज होए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, एंड नॉन रेकरिंग जो भी पैसा आए वह यूज हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इन विच एसेट्स आर क्रिएटेड. ठीक है. श्री मोहम्मद हालिम खान, he has been the former secretary of Department of Disinvestment to Government of India. He suggests that a constitutional amendment can be done to Article 266. Article 266(1) talks about the Consolidated Fund of India, जो कि ये कहता है कि गवर्नमेंट की कोई भी टैक्स रिसीट होए, नॉन टैक्स रिसीट्स होए, या बिजनेस का पैसा होए, या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा आ रहा होए, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो इससे क्या होता है? By making all the money that government receives a part of Consolidated Fund of India, we are not able to differentiate as to what was the money that came from by selling the assets or by monetizing the assets. So he says that there is a possibility that we can do a constitutional amendment to Article 266 and expand the scope of Consolidated Fund of India in such a manner that all the money which has been generated by monetization of assets or by disinvestment of assets is sent to a sovereign fund kind of a thing. Sovereign fund होता है वह फंड जो कि सरकार का स्पेशली होता है for the purpose of investment. These funds are very common in many countries such as UAE, Japan, even China has its own sovereign fund. So then this sovereign fund can be used for the purpose of investment. In this very manner, people would be assured that the government is not selling government assets for the purpose of making day-to-day expenditures. And in this very manner, एक mechanism बन जाएगा जिससे people would know that the money generated is spent on positive externalities. इस term को आप देखिए. So basically मतलब इसका वही है कि हमने एसेट्स ही फर्दर क्रिएट करे हैं एंड वह एसेट्स हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट्स रीप करेंगे rather than on everyday expenses. So it is terms like these that make your answers attractive. Now, this was all with respect to this answer. However, there is another point that we need to discuss over here.
Many people say that it is not the job of the government to be in business. Government has no job to be in the business, and therefore why are you saying that this money that the government is generating should be used in for the purpose of investment, and why can't this money be used for the purpose of welfare? सो यहाँ पे हम आपको बेसिकली इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट ये होता है, या इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं एज टू व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट। केन्जियन मॉडल ये कहता है, केन्जियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि एक साइक्लिकल मैनर में इकोनॉमी चलती है, जिसके अंदर इकोनॉमी में बुलिश स्पिरिट्स भी आती हैं एंड बेरिश स्पिरिट्स भी आती हैं। बुलिश जब स्पिरिट आती है तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही होती है एंड उसके अंदर ग्रोथ ऊपर जा रही होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वह इन्वेस्टमेंट रिटर्न उतना देना बंद कर देती है एंड उस टाइम पे बेरिश स्पिरिट शुरू हो जाती है एंड इकोनॉमी स्टार्ट्स कमिंग डाउन। सो जब बुलिश स्पिरिट्स चल रही होती है तब सरकार को एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए या अपना एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए एंड लेट द मार्केट ड्राइव द इकोनॉमी। एंड जैसे ही बुलिश स्ट्रीम खत्म हो जाती है एंड वो जो पीरियड आता है बीच में बेरिश स्पिरिट्स का, उस टाइम पे गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर एनहांस करना चाहिए एंड मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए। सो इट इज फॉर दिस वेरी पर्पस ओनली कि यहाँ पे गवर्नमेंट को उस पैसा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली, देयर आर मेनी सेक्टर्स एंड मेनी एरियाज जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स चांस नहीं लेना चाहते हैं एंड या फिर जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वह इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जनरेट कर पाए। उन सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट को अपना हाथ डालना पड़ता है सबसे पहले। यही हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो, जैसे कि कुछ एक सेक्टर्स थे आयरन, कोल वगैरह, जहां पे सिस्टम अवेलेबल नहीं था, देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट क्यों स्टेप इन कर सकती है? नंबर वन, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी है एंड नंबर टू, गवर्नमेंट कभी लॉस में नहीं रहती है। वाई डू आई से कि गवर्नमेंट कभी लॉस में नहीं जाती है? बिकॉज गवर्नमेंट ने जो भी पैसा खर्चा है अल्टीमेटली वह अपने लोगों पे खर्चा है एंड अल्टीमेटली उस पैसे का फायदा लोगों को पहुंचता है, इसलिए गवर्नमेंट का कभी लॉस नहीं होता है इन अ इकोनॉमी। अगर एक फादर अपने सन को पैसा दे दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फादर का लॉस हो गया है। सो इन दिस वेरी मैनर गवर्नमेंट कैन नेवर बी इन लॉस। सो इन दिस वेरी मैनर गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को खड़ा करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट करती है एंड उसके एंड बाय डूइंग दैट थिंग दैट सेक्टर गेट्स अप एंड गेट्स अ बूस्ट एंड पीपल स्टार्ट कमिंग इनटू दैट वेरी सेक्टर। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे या उससे पहले कैसे, हाउ डड जापान बिकेम इंडस्ट्रियलाइज्ड, उसका मॉडल जापान का यही था कि व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू ओवर देयर। गवर्नमेंट ने जापान के अंदर, जापानीज गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक मॉडल शुरू किया जिसमें उन्होंने सेक्टर्स चूज करे एंड गवर्नमेंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने सोचा मुझे आयरन इंडस्ट्री चाहिए, टेक्नोलॉजी चुराई अमेरिका से, आयरन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करी, खड़ा किया, चलाया एंड नाउ गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब मैं इसे कॉस्ट प्राइस पे सेल कर देती हूँ। अब आप सोचिए कि आपको एक फैक्ट्री मिल गई, चली चलाई फैक्ट्री, एंड उस फैक्ट्री को लगाने की कॉस्ट भी 100 करोड़ भी की थी, आज वो पैसा भी जनरेट कर रही है, सक्सेसफुल है एंड आपको 100 करोड़ में ही मिल रही है, कोई आपसे प्रीमियम भी नहीं ले रहा। सो naturally there will be numerous takers for this thing. People came in, people purchased this, government put these assets on sale. फिर ये जो 100 करोड़ रुपए आया, गवर्नमेंट ने सोचा अब रबड़ की फैक्ट्री लगा देती हूँ, रबड़ की कोई इंडस्ट्री नहीं है देश में, रबड़ की इंडस्ट्री चल गई, उसको बेच दिया। Whereas इंडिया में हमने क्या किया, इंडिया में हमारी कंपनीज हम चलाते रहे 50-50, 60-60 साल तक। एंड इन दिस वेरी मैनर not only did our entities were distorting market, also they were blocking eminent government funds which could have been used in giving boost to other sectors. So इस प्लान का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें झलक दिखती है इस तरीके से वर्क करने के लिए, जापान की तरीके से वर्क करने के लिए। So this is all with respect to, and secondly there's one more point that I'd like to add over here. Whenever the government invests in any project or disinvests in any project and any other entity comes in,
mind it that that other entity is not exempted from the taxes of the government. And as the business of that very entity grows, the taxes, the revenue generated via taxes for the government also increases. So in this very manner, even after disinvestment, the government never remains in loss. Government को पैसा भी मिलता है, and again if that very company succeeds, तब government को tax के अंदर भी share मिलता है. So this is all with respect to the national monetization plan, and also a key feature with respect to national infrastructure pipeline. This would be all with respect to today. Should you have any doubts, feel free to ask your doubts in the comment section. I'll also be attaching a PDF of this thing with you. Also, all your suggestions with respect to this show are welcomed. That will be all. Thank you and have a nice day.